In every course, whether it's Indian CA, CMA, whether it's international course, we need to go into crux of the course and we need to focus those areas which we know that are critical. तो ACCA के अंदर क्रिटिकल एरिया है ऑप्शनल पेपर टू क्लियर. द कंपल्सरी पेपर इन प्रोफेशनल लेवल SBL, SBR, not a tension. Not a tension means I am not saying that key student can pass without study. But they will face problem in these optional papers. AFM, Advanced Financial Management, EPM, Advanced Performance Management, ATX, Advanced Taxation, and EEE, Advanced Auditing and Assurance. आपको इन चार में से 2 exams need to be given. They are saying that when you are selecting out of the 4 the 2 subjects, which is your choice, that means institute ऐसा सोचता है आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा. आप अगर परफेक्ट से थोड़े से भी नीचे होगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे. इट ऑलरेडी हैपेंड लास्ट, आई विल से, आई डोंट रिमेंबर ऑप्शनल पेपर कब आया था, मोटा मोटी 2014-15 से चल रहा है और इतने सारे बैचेस मैंने पढ़ाए हैं. आई एम टीचिंग इन ऑप्शनल पेपर AFM, APM बिकॉज दैट इज माई स्पेशलाइजेशन. तो अपने वही 2 सब्जेक्ट डील करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि मान लीजिए आई एम नॉट टीचिंग एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस तो उसमें कोई रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पर आई एम टीचिंग इन एडवांस, नॉट टीचिंग एडवांस टैक्सेशन तो रिजल्ट इज वेरी गुड. इट्स जस्ट द, यू कैन से, ब्रेन. चारों सब्जेक्ट डिफिकल्ट टू पास है. Normally in these 4 subjects the pass percentage is between 30 to 40%. Sometime it goes down to 31-32%. Sometime it is 38-39%. But 40 के ऊपर और 30 के नीचे नहीं जाता. Now on a standalone basis, those who are CA chartered accountant or CMA qualified or doing CA CMA, percentage बहुत अच्छा है. Because in CA the pass percentage is further lower, 10%, 11%. So as compared to that, 35 is looking good. If we say average pass percentage is optional paper, but we need to see in CA, if I will talk CA Inter and CA Foundation, the 50% students are just registered in the CA course or CMA course just for the sake of कि भाई हम भी CA कर रहे हैं. कुछ उनको करना नहीं है तो आप उनको परसेंटेज में गिनोगे तो उनसे मतलब ही नहीं है. बिकॉज इन CA, इफ आई विल से, द स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग एग्जाम्स आर अराउंड 1 lakh plus, and in ACCA it is never going to be 1 lakh plus. If I am talking about India, international courses, the students are there from outside India also. But India में स्टूडेंट कितने एग्जाम दे रहे? आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा, बट मोटा मोटी 5 से 10 हजार. एंड all these subjects, all 13 subjects. So आज अगर अपनी बात करें AFM, APM, Advanced Auditing and Assurance, Advanced Taxation, इंडिया में कितना स्टूडेंट लोग एग्जाम दिया होगा? Approximately 1000, maybe 1500, 2000, उससे ज्यादा नहीं. I am talking about India. And those 1500 or 2000 students are all very knowledgeable. CA जैसे या CMA जैसे नहीं है कि कोई भी आ गया. उसमें से आधे से ज्यादा तो CA CMA क्वालिफाइड है. 20-30% ऐसे हैं जिन लोग में भी CA क्वालिफाइड नहीं है बट CA फाइनलिस्ट हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ACCA शुरू से कर रहे हैं. They have done the knowledge level, they have done the skill level, and then they are in the professional level. मतलब पूरे के पूरे ऑप्शनल पेपर या प्रोफेशनल लेवल में बेवकूफ कोई भी नहीं. ऑल हैव गुड ब्रेन. आई एम नॉट सेइंग CA खराब कोर्स है, बट वहां का मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ACCA मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी डिफरेंट, सर. सो even though the result is 30, 35, 40% maybe, then also it is very difficult to crack. The easy part in ACCA is what? If you are studying AFM, you focus on AFM only.
आपको दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देना है। सीए में वही प्रॉब्लम है कि आप अगर एक ग्रुप का एग्जाम भी दोगे तो आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट तो ध्यान देना होगा एक साथ। तो एक साथ 4 सब्जेक्ट्स मैनेज करना इज डिफिकल्ट, एंड फॉर दैट रीजन अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ते हो और आपको हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना होगा, इफ यू आर अ सीए सीएमए स्टूडेंट, you can't say that I will study for 1 month one subject another. That's not the correct way. स्टूडेंट जो पास होते हैं वो हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो if you give for 2 groups, then in that case, like I gave, CA inter both group together, CA final both group together, CMA inter fourth group together, CMA final yeah नहीं 4 ही बोलेंगे सर। अब आप मान लीजिए फाइनेंस का हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपके सीएमए या सीएमए एसएफएम एएफएम जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो यही है ना यार, अलग थोड़ी ना है। वैसे अभी सीए इंटर में हम जाएंगे, अभी फाइनल नोट्स वो नहीं, हाँ वही बोल रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है जहां 2 चीज को मिलाया है, लेकिन नॉर्मली वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट है और स्टूडेंट लोग जनरली एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं। तो आप अगर एक एक सब्जेक्ट 2 घंटे भी पढ़ोगे तो दिन में 8 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सीए सीएमए स्टूडेंट को दिन में 8-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। आपको मन लगे ना लगे, यू नीड टू स्टडी 8-10 आवर्स एवरी डे, बिकॉज देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट यू आर अपियरिंग, एंड इफ यू आर टारगेटिंग 2 ग्रुप्स टुगेदर, देन तो आई कांट से व्हाट अमाउंट ऑफ स्टडी यू नीड टू डू। बट यहां पर तो ऐसा नहीं है ना, आप एएफएम पढ़ रहे हैं तो भाई आपको एएफएम ही पढ़ना है। आप एक बार अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स फैक्स भूल जाइए, आप केवल वो एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, आप डेली उसी को पढ़िए और 3 महीने बाद उस सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए। बिलीव करिए अगर सीए सीएमए ऐसा हो जाए तो पास परसेंटेज बहुत जोर बढ़ जाएगा। एग्जाम क्वार्टरली हो जाए 6 मंथली के बदले, और स्टूडेंट को बोला जाए अब से ग्रुप स्ट्रक्चर बंद, अब से पेपर वाइज एग्जाम है अलग अलग लेवल का और आपको क्वार्टरली एग्जाम देना है। तो बेचारा स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पे फोकस करके उसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम देकर इजीली क्लियर कर पाएगा। बिकॉज मेरे को भी ध्यान है, आप लोग को भी ध्यान होएगा, जब हम लोग सीए का एग्जाम देने जाते हैं, आज पहला पेपर अकाउंट्स का है तो हम 7 दिन से अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं, दूसरा एक बार बंद कर दिए, लेकिन दूसरा उसके बाद ऑडिट, फिर लॉ, फिर उसके बाद एफएम, मैनेज नहीं हो पाता बिकॉज हमको ध्यान नहीं है ना। हम पहले क्या पढ़े, कंटिन्यूअसली एग्जाम देना। हम लोग के टाइम पे तो 8 एग्जाम 8 डेज। नाउ चलिए एक तो सहूलियत है कि फर्स्ट डे एग्जाम, सेकेंड डे हॉलीडे, थर्ड डे एग्जाम, उतना तो चलो सुधर समझ में आया, बट फिर भी एक साथ मैनेजिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स इज नॉट ए जोक, इट इज नॉट ए कॉमन थिंग, इज नॉट एन ईजी थिंग। यहां पर वही ईजी है, लेकिन कोई सोचेगा एसीसीए ईजी है, सिलेबस कम है, इजिली पास हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है सर। अभी एक स्टूडेंट मेरे को फोन किया कल परसों, बोला भैया हम लोग जब सीए का फाइनल का ट्यूशन लेते हैं तो वहां पर हम लोग को 250-300 घंटा पढ़ाया जाता है, और आप एएफएम या एसबीआर वगैरह पढ़ा रहे हैं मान लीजिए 100 घंटे, तो सर 100 और 250-300 में ऐसा कैसे हो जाता है? अगर अपने सीए के अंदर भी केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते और एग्जाम देते, मैं क्वेश्चन आवर्स का नहीं बोल रहा, मैं क्वेश्चन बोल रहा कि टीचर्स का टाइम सब, बिकॉज स्टूडेंट को खुद से पढ़ने का टाइम मिलता, वो एफर्ट्स पुट कर पाता, और जब वो एफर्ट्स पुट करता तो जरूर वो पास होता। अभी क्या सीए में क्या है, मान लीजिए आप ट्यूशन ले रहे हैं, आप मॉर्निंग में एक ट्यूशन लिए, दूसरा इवनिंग में, कभी सैटरडे, सीए इंटर वाला तो सुबह से रात तक ट्यूशन ही जाते रहता है, बिकॉज आर्टिकलशिप नहीं है तो उनका ट्यूशन अलग तरह से। बट सीए फाइनल वाला भी मॉर्निंग इवनिंग हर दिन ट्यूशन कर रहे हैं, तो वो अपने आप कब पढ़ेगा? व्हेन ही विल बी एबल टू गिव टाइम फॉर हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जब तक आपको चीज खुद को नहीं समझ में आएगी, आप पास नहीं हो सकते, यू कांट पास। सो क्वेश्चन ये है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि आज हम लोग मान लीजिए एएफएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1 मंथ हो गया है मोटा मोटी, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑन आई थिंक 12th और 11th ऑफ दिसंबर, और 12th और 11th ऑफ जनवरी तो जा चुका ना, यानी कि 1 महीना हो गया। हम लोग जो 1 महीना में पढ़े हैं, वॉट एवर वी हैव स्टडीड, डू आई नो एवरीथिंग टिल टुडे? अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो, कि उसमें भी बैकलॉग है, उसमें भी अगर बैकलॉग है तो अब हम एग्जाम फॉर्म कैसे भरे?
because exam form need to be filled up by 29th of January. If you don't fill, you can't give exam in March. और अगर कोई बोलेगा सर मैं थोड़ा और देर से भरूंगा, तो एग्जाम फीस इज अराउंड 17,000 INR. If you fill up the exam form after 29 January till 5th or 6th of February, then it will be in place of 17,000, 40,000. Maybe you have money, then also आपको एग्जाम 29th जनवरी के अंदर ही भरना पड़ेगा. और अगर 29th जनवरी तक आपको ये दिख नहीं रहा है कि मेरा इतना चीज हो गया, अभी टाइम है, ये नहीं कि 2 दिन बाद एग्जाम है, मेरे को फरवरी मार्च 8-10 तारीख को एग्जाम देना है, अभी 40 डेज बाकी है, मेरा इतना पोर्शन कवर करना बाकी है जो मैं ऐसे कवर करूंगा और मैं मॉक पेपर्स वगैरह करके बढ़िया से प्रैक्टिस करके एग्जाम दूंगा. अगर कोई स्टूडेंट आज के दिन खड़ा है जीरो पे, अब वो जीरो वाला स्टूडेंट कैसे तो एग्जाम बुक करे और कैसे एग्जाम दे. अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है पिछली बार भी एग्जाम नहीं दिया, ACCA कर रहा है और एग्जाम नहीं दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दिसंबर में उसका ऑलरेडी एनुअल सब्सक्रिप्शन लग रहा है. इंस्टीट्यूट तो एनुअल सब्सक्रिप्शन डिमांड करने लग गया ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन तो पे करना पड़ेगा. यानी कि जितना साल आप कोर्स करेंगे हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन लगते जाएगा. और आपको मन में भी लगेगा कि मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिसंबर में नहीं दिया, अब मैं मार्च में भी नहीं दे रहा हूं, तो मैं करूंगा क्या, हाउ आई विल प्रोसीड. और अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं तो वैसे भी एग्जाम देने से गड़बड़ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. उससे दुख होगा, सैडनेस आएगी, डिमोटिवेशन आएगा. यानी कि ऐसा नहीं है कि ACCA फ्री का है भाई, ऐसा नहीं है. जो भी पास होते हैं, जो भी, एक सिंगल पीस नहीं है जिसने प्रॉपर एफर्ट्स पुट नहीं किया हो, जो डिजर्व नहीं करता पास होने का. कुछ कुछ का बैड लक है कि 50 पास मार्क्स से 47 आ गया, 48 आ गया. लेकिन बैड लक क्यों है? क्योंकि हम 50 के पास खड़े हैं, हम एक सब्जेक्ट को भी 60-70 पे नहीं ले जा रहे. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को मालूम है, मेरे को मालूम है, उसका फेल असंभव है, इम्पॉसिबल है उसका फेल होना. दे नो, आई नो, बिकॉज मैं उनको पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है. और अगर किसी का फेल हो सकता है, वो भी स्टूडेंट और मेरे को दोनों को मालूम है. और कोई डिजर्व करता है फेल होना, खराब बात बोल रहा हूं, वो भी उसको और मेरे को भी मालूम है. यानी कि ये नहीं कि आज रिजल्ट आया देन इट इज डिसाइडिंग आवर फेट, लक और एनीथिंग. रिजल्ट डे इज नॉट द डे विच इज डिसाइडिंग योर फ्यूचर, योर पास फेल. आपका जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स है कोर्स की तरफ, वही आपको हेल्प करेगा ये कोर्स पास करने में. और जब आप AFM पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज सुप्रीम होना पड़ेगा. आई एम जस्ट सेइंग कि वाई CA और CMA स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग एग्जाम्शंस इन AFM. इन ACCA वाई दे आर नॉट गेटिंग, वो भी एग्जाम्शन दे देना चाहिए ना. वॉट एवर वी आर स्टडिंग इन ACCA, माने इन इंडियन CA एंड CMA, जो लेवल AFM पेपर का है वो आपका CA SFM, वो आपका CMA फाइनेंस का पेपर से यहां बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है. आप ये बोल सकते हैं सर कैपिटल बजटिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डिविडेंड है, वैल्यूएशंस है, डेरिवेटिव्स है, वही है, सिलेबस तो वही है. लेकिन आप कोई भी एक टॉपिक के अंदर द वे दे आर टीचिंग एंड द वे दे आर कवरिंग द सिलेबस, वैसा इंडियन कोर्सेस में नहीं है. आई एम नॉट डिमीनिंग देम, दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट वे टू पास. और यहां अलग है, आपको एक बेसिक नॉलेज अच्छा है, आपको पहले से कुछ आता है या नहीं भी आता है, 5-7 साल पहले पढ़े थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. आपके मन से ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये टॉपिक हो गया तो मेरे से इसमें सम्स बन जाएंगे. रॉन्ग बनेंगे. ये नहीं कि 100 नंबर का पेपर आएगा, मैं 30 मार्क्स छोड़कर आऊंगा और मैं जो करूंगा उसमें भी गलतियां करूंगा, तो कैसे पास होएगी. पूरा 100 नंबर का पेपर करना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना होगा कि हमें ये चीजें आती है. मान लीजिए मैं क्लास में कोई सम कर रहा हूं, तो मेरे से क्या रॉन्ग नहीं होता? मैं आप लोग से डरता हूं? नहीं डरते, नहीं डरते. क्यों नहीं डरते? मैं अगर रॉन्ग भी कर रहा हूं तो मैं उसका लॉजिक दे रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, या बाई चांस कहीं पर मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया. ह्यूमन बीइंग्स, मिस्टेक तो होएगी ना.
बट अपने ये थोड़ी ना कि कॉन्सेप्ट नहीं जानते कि ये होगा कैसे। क्वेश्चन है तो इसमें क्या कॉलम बनाना है, क्या लिखना है, थ्योरी है तो उसमें क्या पॉइंट डालना है जिससे मेरे को नंबर मिले, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे को मालूम है क्या लिखना है, क्या करना है, कितनी देर में होगा। आपको वहां पहुंचना होगा। आप अगर वहां रीच नहीं करोगे तो इन दैट केस आप एग्जाम का फॉर्म भरोगे कैसे? और आप नहीं भरोगे एग्जाम का फॉर्म फिर तो अगर कोई स्टूडेंट 2 क्वार्टर एग्जाम नहीं दिया, वो गया, इट्स गॉन। वो और एग्जाम देने वाला भी नहीं है। उसका जो भी 2 क्वार्टर का पढ़ाई हुआ, जो पैसा मेरे को दिया, जो इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन का दिया, एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया, सब गया। मनी इज नॉट अ फैक्टर। नाउ समथिंग यू स्टार्टेड, समथिंग यू वांट टू डू एंड यू कुडंट डू, इट विल ऑलवेज हर्ट यू टिल यू डाई। आप अगर 30 साल के हैं, आप अगर 70 साल जियोगे, 40 साल आपके दिमाग में रहेगा, मैं ये कर नहीं पाया था। किसी को बोलने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर प्योर टू आवर सेल्फ, वी आर नॉट प्योर टू एनीबडी एल्स। वो तो हम लोग घमा चिकनी चौपड़ी बातें करते हैं। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, उससे करके क्या होएगा वो बाद का बात है। वेदर एसीसीए करने से कोई लॉटरी लगने वाला है, कोई दिवाली बम्पर लॉटरी है, कोई क्रिसमस लॉटरी है, आज क्या बोले संक्रांति का लॉटरी, कुछ नहीं है सर। आपको कोई चीज करना है, आपने उसका बीड़ा उठाया, आपको करना है। आपको पता है कि आपके पास टाइम कम है, रिसोर्सेस कम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन आपने उसको क्यों किया? कि इसलिए कि मैं उसको करके कुछ जीवन में करूंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा। अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी ऐसा पता नहीं। भगवान सबके लिए है, वेदर इट्स गॉड, वेदर इट्स अल्लाह, डजेंट मैटर। हिंदू मुस्लिम ये सब कोई मतलब नहीं है। जो अपना एफर्ट्स पुट करेगा, जो अपने लिए काम करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एएफएम पेपर ऐसा नहीं है कि आप क्लास कर लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप केवल यहां आ जाएंगे या मान लीजिए रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप ये पेपर पास नहीं कर सकते। इसका भाई एपीएम भी है, दोनों सेम है, दोनों का पास परसेंटेज 30 to 40% है। एएफएम पढ़ने के लिए, पास करने के लिए एपीएम से ज्यादा पढ़ना है, बिकॉज एपीएम तो थ्योरी है। थ्योरी में स्टूडेंट को कम पढ़ना पड़ता है। बट थ्योरी में प्रॉब्लम क्या होती है? आप थ्योरी पढ़े, आपको लगता है आ गया, आप खुद लिख के करेंगे ही नहीं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आप उसका प्रॉपर आंसर बिल्टअप नहीं कर सकते। अगर मेरे को एपीएम एग्जाम देना है, बिलीव करिए, तो मेरे को भी पेपर सॉल्व करके उसके बाद एग्जाम में बैठना है। इवन दो आई एम टीचिंग एपीएम फॉर मोर देन 12 years, डजेंट मैटर। एग्जाम अलग है और आपका एक नॉलेज अलग चीज है। एग्जाम के लिए स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो आप एक चीज समझ गए कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैंने पढ़ाया, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाया, हो गया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होएगा ही नहीं। और न्यूमेरिकल पेपर है, साथ में थ्योरी भी है, प्रैक्टिस और ज्यादा चाहिए। बिकॉज थ्योरी तो आप फटाफट 10, 15, 20 मिनट में पॉइंट्स वगैरह लिख के समझ लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स को तो पूरा लिखना पड़ेगा, कॉलम में फिगर्स, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर। आप केवल क्लास में बैठकर या रिकॉर्डिंग बैठकर कैसे समझ जाएंगे? इम्पॉसिबल है सर, चाहे आप दुनिया के वन ऑफ द चैंपियन स्टूडेंट। और इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि सपोज यू स्टडीड 5, 10, 15 years बैक, उससे प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज वेदर वी आर पुटिंग एफर्ट्स नाउ और नॉट। क्या हम लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं कि नहीं? सो यू थिंक लॉजिकली वेदर आई एम पुटिंग माई प्रॉपर एफर्ट्स। आपको डेली पढ़ना होगा। अभी मैं जिसको वॉइस मैसेज दे रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, आपको आवाज नहीं सुन रहा था, वो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं कि सर व्हाट यू से, आई शुड बी डूइंग दैट ओनली, आई हैव डन दैट, आई स्टार्टेड स्टडी आफ्टर 20 years, आई पास द एग्जाम, थैंक यू सर, बोले ही जा रहे हैं। सो मैं बोला भाई यहां मेरे को पर्सनली नहीं बोल के ग्रुप में बोलो। ग्रुप में बताओ कि आपने क्या किया, कैसे पास हुए, क्या करना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मोटिवेट करिए दूसरा को। बिकॉज कोई ऐसा भी तो है ना जो नहीं पास हुआ। क्यों नहीं हुआ? मान लीजिए बैड लक ही है, बैड लक मेरे साथ ही क्यों हुआ? बिकॉज आपका एफर्ट्स कोई भी चीज में 90-95% है। 5% आपका एफर्ट्स नहीं, वो भगवान का एफर्ट्स है। बैड लक हो गया, लेकिन आपका 47 क्यों आया, 48 क्यों आया? आप क्यों 50 के पास खड़े हैं? मान लीजिए कोई स्टूडेंट 50 स्कोर किया है और कोई स्टूडेंट 48, दोनों में कोई अंतर है क्या? बट 48 वाला फेल है, 50 वाला पास है, 51 वाला पास है। 50 का बैड गुड लक है, 48 का बैड लक है। बट वाई वी आर स्टैंडिंग एट 50? वाई वी आर क्रॉसिंग द बॉर्डर प्रॉपरली? 60, 70, 80 में खड़े रहेंगे तो 50 होएगा ही नहीं।
ऐसे अनगिनत स्टूडेंट है, अनगिनत है जिनका 50 से कम इस जन्म में आ ही नहीं सकता है। मे बी AFM APM ऑल्सो, उनका 50 से कम आ ही नहीं सकता, उनको और मेरे को मालूम है। तो वो वहां कैसे पहुंचे? वो भी तो स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत महान है, बहुत ब्रेनी है, एफर्ट्स है उनका, एफर्ट्स पुट करते हैं अपना। और सारे लोग प्रोफेशनल लेवल में वर्किंग है। कोई भी स्टूडेंट आएगा बोलेगा सर आई एम वर्किंग, ए भाई प्रोफेशनल लेवल में नोबडी इज देयर हु इज नॉट वर्किंग। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन प्रोफेशनल लेवल 30+, इन माई केस इट इज अराउंड 35। तो 35 ईयर का कोई भी स्टूडेंट थोड़ी ना घर पे बैठा है, काम ही कर रहे। बट आप जब पढ़ने आ रहे हैं, जब कुछ करने आ रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो अभी अब आगे का स्ट्रैटेजी ये है, दिमाग में ये बात एक बार भी आना ही नहीं चाहिए कि हमें एग्जाम मार्च में नहीं देना है, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लाइफ। इफ द एग्जाम इज देयर एंड आई एम नॉट गिविंग एग्जाम, नॉट बुकिंग द एग्जाम, इट्स वर्स्ट फेलियर। मान लीजिए किसी का पैर टूट गया तो भी एग्जाम देना है। जब पैर टूट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप बेड पे ही हैं और पढ़ने का टाइम मिल रहा है। ये सब कोई बात नहीं। ऑफिस में ज्यादा काम है, ऑफिस में 2 घंटा ज्यादा काम करा रहा है, कोई बात नहीं। ऑफिस के टाइम पे ऑफिस को सोचिए, बिकॉज इफ यू गिव रिवॉर्ड टू योर एम्प्लॉयर यू विल ऑटोमेटिकली गेट इंसेंटिव, प्रमोशन। ACCA का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। जब जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान से करिए, मन से करिए। जब ऑफिस में है तो ऑफिस का काम पूरा पूरा फोकस के साथ करिए। जब पढ़ने बैठ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अब उस पर फोकस करिए। जब आप फोकस करके पढ़ेंगे तो इन दैट केस इजीली एग्जाम पास करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट है अभी तक स्टडी नहीं किया है, चाहे क्लास ले रहा हो, चाहे मेरे से नहीं ले रहा हो, अपने आप पढ़ रहा हो, कोई भी, और वो सोच रहा है मेरे को मार्च में एग्जाम देना है क्या, सो मार्च में एग्जाम देना है क्या, देना है। इसके लिए मैं 99 100% देना है। आप अगर 1 महीना से कुछ स्टडी नहीं किए, थोड़ा ज्यादा पढ़िए। अब चेष्टा करिए कि दिन में 2 घंटा के बदले 3-4 घंटा हम पढ़ पाए। मे बी वीकेंड, सैटरडे, संडे, जब ऑफिस का छुट्टी है, हाफ डे है, उस समय थोड़ा ज्यादा स्टडी करें और अपने आप को वहां तक पहुंचाएं कि बाय द एग्जाम बुकिंग डेट आप एक हैंडसम तरीके से जो कवर हो आप कवर कर ले। आप पहले अपना रूटीन बनाइए बैठ के कि भाई मेरे को टोटल सिलेबस के लिए कितनी देर पढ़ना है। सो मैं बोलूंगा टोटल सिलेबस के लिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं मैक्सिमम 180 आवर इंक्लूडिंग द क्लासेस। अब आप आज से अगर 180 आवर गिनते हैं तो आपको देखना होगा कि दिन में अब 2 घंटा से काम नहीं बनेगा। दिन में 2.5 आवर 3 आवर करीब पढ़ना होगा। देन इन दैट केस मार्च 8-10 तारीख को आप 180 आवर तक का स्टडी कर पाएंगे। उसमें आप देखिए कि आपको कौन सा पेपर में, कौन सा सब्जेक्ट में कितनी देर स्टडी करना है। आप एक बार टॉपिक खोलिए, उसको गो थ्रू करिए, जस्ट 4-5 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा इसमें मेरे को इतना देर लगेगा। ऐसे करके टाइमिंग डिसाइड करिए और वो टाइमिंग के बेसिस पे अपना रूटीन बना लीजिए कि आज मंडे है, मंडे में इस टाइम पे पढ़ूंगा, ट्यूसडे इस टाइम पे पढ़ूंगा, मंडे ये कंप्लीट करना है, ट्यूसडे ये कंप्लीट करना है। ऐसे करके आप अपना रूटीन बना के आगे बढ़िए और हर वीक के एंड में बाय संडे, कमिंग संडे, आप अपने आप को कंपेयर करेंगे व्हाट यू वांट टू अचीव इन द वीक, वेदर इट इज अचीव्ड और नॉट। कभी भी अचीव नहीं होगा, बिकॉज आप जो अचीव करना चाहते हैं वो ऑलवेज थोड़ा कम ही रह जाता है। ये जिंदगी का नियम है। लेकिन आप अगर अचीव करना चाहते थे स्टडी ऑफ 20 आवर्स, आपने 15 आवर किया, कुछ तो हुआ। जब आप 20 आवर का चीज 15 आवर में कंप्लीट करेंगे, माने कम पढ़ेंगे, तो भी आप एग्जाम दे पाएंगे। यू विल बी एबल टू गिव द एग्जाम, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर अब भी हम लोग एक्शन नहीं लेंगे देन इन दैट केस मार्च में एग्जाम नहीं दे सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्जाम फॉर्म आज ही बुक कर दीजिए, बिकॉज वेन यू बुक द एग्जाम द ऑप्शन फ्रॉम लाइफ गोज ऑफ। आपके लाइफ से ऑप्शन खत्म। जब आप एग्जाम बुक कर दोगे तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आपका फोकस अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और वैसे भी इफ यू वांट टू गिव एग्जाम इन एग्जाम सेंटर, देन सेंटर फिल्ड अप वेरी फास्ट इन इंटायर इंडिया। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में हर जगह सेंटर बहुत जल्दी भर जाता है। तो आप अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं, आपको तो एग्जाम अभी बुक करना है, मैं ऐसा बोलूंगा। एग्जाम बुक करने के लिए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना है,
एग्जाम बुकिंग का टैब को क्लिक करना है, उसमें बोलेगा अपना आईडी और पासवर्ड लिखिए, डालेंगे और एग्जाम बुक करेंगे। अगर एग्जाम बुक करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मॉर्निंग में वन स्टूडेंट इज गिविंग दैट द वेबसाइट, इट इज रिटन ऑन द ECCA वेबसाइट, इट इज अंडर मेंटेनेंस फॉर स्टूडेंट। सो मेंटेनेंस हो रहा है, थोड़ा देर रुक जाइए, 1-1.5 घंटा दोपहर तक चालू हो जाएगा। और मे भी फिर भी नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टीट्यूट को मेल डालिए, साथ में CC हम लोग को, कि आई वॉन्ट टू बुक द एग्जाम बट आई एम गेटिंग दिस स्क्रीन, आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरे को ये सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, प्लीज हेल्प मी एज फास्ट एज पॉसिबल। हम आपका मेल इंडियन टीम को दे देंगे, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। बेसिकली बोलने का मतलब ये हुआ, अगर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालना पड़ेगा। कहां पर? फर्स्ट क्लास में बोलता हूं, यू कैन चेक इन द सीट, students@accaglobal.com, students@accaglobal.com। अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर बताकर स्क्रीनशॉट के साथ मेल डालना है, साथ में CC हम लोग को भी कर दीजिए। सो हम इंडियन टीम को बोलकर आपका काम करा देंगे। लेकिन आप केवल मेरे को बोलेंगे सर नहीं खुल रहा, मैं क्या करूं यार, मेरे पास उनका बैकएंड नहीं है वेबसाइट का, वो ACCA इंस्टीट्यूट के पास ही है, आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। एग्जाम का फॉर्म बुक करिए, अपना स्टडी को इतना जोर से चालू करिए कि बाय द एंड ऑफ जनवरी यू फील कॉन्फिडेंट कि अभी 40 डेज और बाकी है और मैं इतना दिन में अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे लूंगा। बिकॉज एग्जाम नहीं देना इज द वर्स्ट थिंग। और हर चीज, वेदर इट्स इजी पेपर, सपोज कोई बोलेगा इजी पेपर है SBL SBR, you have to give your proper efforts. Easy paper means pass percentage is good. Pass percentage in ACCA is around 50%, around 45 to 55%, that's the range. तो ज्यादा परसेंटेज है इसका मतलब थोड़ा इजी है, लेकिन ये नहीं कि आप अगर प्रॉपर एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे तो SBL और SBR में पास हो जाएंगे, नहीं होने वाले। One subject, you need to study all the things, you need to solve questions, you need to manage your time, you need to write theories, answers in your practice, you need to give mock papers before the exam, around 15 days पहले सारा mock paper करना और उसको देखना 3 घंटा में मेरा कितना नंबर आ रहा है, ये सब करना होगा आपको। चाहे आप चैंपियन हैं, चाहे आप एवरेज है, चाहे आप बिलो एवरेज है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। Maybe you will think that presently I am not prepared because मार्च है, ईयर एंडिंग है, ऑफिस में काम ज्यादा है। अच्छा तो कभी नहीं होने वाला यार, लाइफ इजी कभी होएगा ही नहीं, नेवर। सो मीन टू से दैट डोंट टेक टेंशन, जस्ट स्टडी, गिव द एग्जाम विथ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, रेगुलर स्टडी, आस्क योर डाउट्स इन द क्लास, आफ्टर द क्लास, इन व्हाट्सएप, इन मेल, आई एम ऑलवेज देयर। अपने आप को ऑलवेज क्लास के साथ रखिए। If you want to make friends in the class, you are always in the WhatsApp group, सारे दोस्त वगैरह हैं। आप अगर नाम नहीं भी जानते किसी को मैसेज कर सकते हैं कि आई एम along with you in the batch, can we study together, मोटिवेशन के लिए अगर ऐसा चाहिए तो ग्रुप बना हुआ है, सबके पास सबका नंबर है ग्रुप में। आपको नाम नहीं मालूम, उसको मैसेज करके बोल दीजिए माई नेम इज दिस, आई एम स्टडिंग AFM, डू यू वांट टू स्टडी टुगेदर। 2-3 लोग होने से थोड़ा जोश ज्यादा आता है, एक लोग पढ़ लिया तो दूसरा भी, जो खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यार, सिंपल बात है। When you are studying in a group, the chances of success, the motivation will be better. बट हां, ग्रुप में कोई एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा ज्यादा जोश में है। बिकॉज अगर सभी लोग ग्रुप में ऐसे हैं, वो भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा, तो फिर ग्रुप का मतलब नहीं। यू नीड टू हैव समबडी इन द ग्रुप हु इज वेरी एनर्जेटिक, जो पढ़ेगा ही तो वो दूसरे को मोटिवेट करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का पर्पस क्या है? या तो मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करूं, या आप एक दूसरा के साथ कनेक्ट करिए। किसी को आपसे नहीं कनेक्ट करना है, ठीक है भाई, टाटा बाय बाय सॉरी हो गया, क्या है जो। आप अगर किसी को मैसेज करेंगे, उसको आपसे कनेक्शन नहीं करना है, क्या इश्यू है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है भाई, इजी टू पास नहीं है। डोंट थिंक 30-35% इज अ वेरी बिग परसेंटेज टू पास। जब आप पूरा 100% एफर्ट्स देंगे, देन यू कैन पास दिस एग्जाम। और एग्जाम फॉर्म तुरंत भरना है। दिमाग में ये सोचना ही नहीं है मैं तो 1 महीने से नहीं पढ़ा, अभी मैं कैसे पढ़ूंगा। एग्जाम फॉर्म भरिए। लास्ट बात, जब आप एग्जाम भर देंगे, उसका डिटेल हमें मेल डाल दीजिए। योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर,
your date of birth, subject for which you are giving exam in March, and center based or remote based. बोलेगा क्यों? We need to give detail to the ACCA institute, whomever we are teaching, उसमें से कौन लोग क्या क्या एग्जाम दे रहे हैं. ये इंस्टीट्यूट का एक ऑडिटिंग प्रोसेस है. इससे इंस्टीट्यूट जज करता है कि सराफ के यहां कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने एग्जाम देते हैं, कितने क्लियर करते हैं. तो सराफ अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्या, सराफ का पास परसेंटेज इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज जो एवरेज में है उससे या उससे ज्यादा है कि नहीं. और अगर सराफ के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो सराफ से थ्रू उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है. मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है, कोई भी इश्यू हो रहा है, तो आप मेरे को बोलते हैं ना. तो जब आप मेरे स्टूडेंट होंगे तभी तो मैं आपके बिहाफ में इंस्टीट्यूट से कुछ कनेक्ट कर सकता हूं ना. जब आप मेरे स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं इंस्टीट्यूट से बोलूंगा, इंस्टीट्यूट बोलेगा दिस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर यू सर, सो वी विल नॉट कम्युनिकेट विथ यू. अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेस दे रहा है एग्जाम के लिए, कोई मेल किया, बोला भैया स्टूडेंट से करवाइए, तो मैं आपको वो सब हेल्प कर पाऊंगा. तो आपका भी भला है, मेरा भी भला है, मेरा जो ऑडिटिंग होता है वो पूरा हो जाएगा. अदरवाइज मेरा टीम को बार बार आपको मेल करना पड़ेगा, आर यू गिविंग एग्जाम, कॉल करना पड़ेगा. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स. सो जब आप एग्जाम बुक कर ले, अपना एग्जाम बुक कंफर्मेशन प्रॉपर डिटेल के साथ, योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट फॉर विच यू आर गिविंग एग्जाम, एंड रिमोट और सेंटर बेसिस, ये डिटेल पांचों आप हम लोग को मेल करेंगे. कहां पर? क्लासेस, और कहीं नहीं, बस यहीं पर, classes@saraf.academy. एग्जाम सेंटर बेस देना है कि रिमोट बेस? आई एम सेइंग पर्सनली, अगर मैं एग्जाम देता होता तो मैं रिमोट बेस देता, घर से मैं सेंटर बेसिस एग्जाम नहीं देता. आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंटरेस्ट, माई प्रेफरेंस. बोलेगा भाई इफ आई विल बी गिविंग एग्जाम फ्रॉम होम, मेरे को एसी चलाना है कि नहीं, मेरे को कौन सा लैपटॉप यूज करना है, मेरे को कीबोर्ड कौन सा यूज करना है, सब मेरा मर्जी है. मेरे को एग्जाम के टाइम पे कहीं भागा धुगी नहीं करना है, कोई टैक्सी नहीं पकड़ना है, कोई कैब नहीं है, कोई कहीं नहीं है, शांति से बैठ के घर से एग्जाम देना है मेरे को. अपना इन्वायरमेंट, अपना फीलिंग, बिकॉज वेन एवर यू गो इन एग्जाम हॉल, द चेयर वट एवर मे बी देयर, बट आपको थोड़ा अलग लगता है. मेरे को वो कंफर्ट सबसे ज्यादा चाहिए. इसीलिए आई वॉन्ट टू गिव एग्जाम फ्रॉम होम. घर से एग्जाम देने से दो प्रॉब्लम आएगा. हो सकता है एग्जाम के टाइम पे लोड शेडिंग हो जाए, या हो सकता है एग्जाम के टाइम पे इंटरनेट बंद हो जाए, या दोनों चल रहे फिर भी आपका सॉफ्टवेयर जो एग्जाम का है एग्जाम के टाइम पे रन नहीं कर रहा है, एसीसीए का सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे नहीं रन कर रहा है. यही तो हो सकता है ना. ऐसा तीनों केस में जब होगा तो आपको फिर से एग्जाम देने दिया जाएगा नेक्स्ट वीक विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस. अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है, लोड शेडिंग, इंटरनेट और द सॉफ्टवेयर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नॉट रनिंग, आपको नेक्स्ट वीक इंस्टीट्यूट एग्जाम फिर से देने देगा. अगर ऐसा केस होगा आपको उनको मेल डालना है जब आपका एग्जाम नहीं हो पाया, फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मेल आईडी टू द स्टूडेंट्स @accaglobal.com, योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, योर इश्यू विद द स्क्रीनशॉट वॉट एवर यू हैव. तो वो लोग आपको नेक्स्ट वीक एग्जाम के लिए बुक कर देंगे. मान लीजिए नेक्स्ट वीक भी ऐसा हो गया वर्स्ट टू वर्स्ट, तब इन दैट केस खराब ये होएगा कि आपको फिर 3 महीने बाद ही एग्जाम देने मिलेगा, लेकिन आपसे एग्जाम फीस फिर से नहीं लेंगे वो लोग. रिमोट एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे क्या जरूरत है, वीडियो बना हुआ है 5 to 6 मिनट्स का. आप रिमोट एग्जाम में जाइए, वीडियो है, उस वीडियो को शांति से देख लीजिए कि द एग्जाम शुड बी इन अ क्लोज्ड रूम, नोबडी कैन कम इन, यू कैन नॉट गो आउट. इन योर टेबल इट शुड बी अ टेबल चेयर बेसिस. इन योर टेबल जस्ट द कंप्यूटर और लैपटॉप विच यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, दैट शुड बी देयर. नथिंग शुड बी देयर ऑन द टेबल, एंड देयर शुड बी अ सेपरेट कीबोर्ड. और लैपटॉप है तो उसी का कीबोर्ड रहेगा, अलग से कुछ नहीं रहेगा. एक ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा. आपके रूम में वो लोग सब फोटो वोटो खींचेंगे जिससे कि आपका एग्जाम एक ऑथेंटिक एथिकल हुए. मतलब कोई चीटिंग फिटिंग नहीं अलाउड है, इट्स इम्पॉसिबल. लेकिन घर से एग्जाम देने से मेरे को ज्यादा सुविधा लगता है, बिकॉज एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देने से कंप्यूटर उनका, कीबोर्ड उनका. हर स्टूडेंट बोलता है सर कीबोर्ड ठीक नहीं था. क्या सारा कीबोर्ड खराब है एग्जाम में? वो आपका हैबिट नहीं है. आप अगर कोई नया मोबाइल फोन खरीदोगे 2-3 दिन लगता है हैबिट बनाने में. कैलकुलेटर खरीदोगे 2-3 लगता है हैबिट बनाने में.
तो आप नया जगह जा रहे हैं तो हैबिट नहीं है, ऊपर से रास्ते में जाओ, आधा घंटा पहले पहुंचो एग्जाम सेंटर की, तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो वहां भी है। प्रॉब्लम नहीं है क्या? जिंदगी में प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट रिमोट बेसिक्स एग्जाम इज फार बेटर देन गोइंग इन ए सेंटर, बट इट्स योर कॉल कि आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है या घर से रिमोट बेसिस एग्जाम देना है। माई प्रेफरेंस पर्सनली रिमोट बेसिस घर से, लेकिन आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट 29 जनवरी है, लेकिन आप 29 जनवरी को वेट मत करिए। यू बुक द एग्जाम टुडे ओनली सो दैट यू आर मोर फोकस्ड कि भैया अब तो पैसा लग गया, अब तो मेरे को एग्जाम देना ही है, अब तो बुक कर दिए। तो इन दैट केस आप बेटर फोकस के साथ स्टडी कर पाएंगे। और अभी जो टाइम है वो एडिक्वेट है। अगर आप दिन में 14 घंटा ऑफिस में जाते हैं तो भी बस आपका जुनून होना चाहिए, वो लेवल होना चाहिए कि हाँ मेरे को पास करना है, मेरे को पढ़ना है। तो इन दैट केस यू कैन इजीली गिव एग्जाम एंड पास। इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी 5 सब्जेक्ट्स टुगेदर। केवल फिनेंस, केवल ऑडिट, केवल टैक्स, केवल अकाउंट्स, डेली वही पढ़ना है। कितना सिंपल है, सोच में ही इजी हो जाता है कि मेरे को आज भी AFM पढ़ना है, कल भी, परसों भी, हर दिन मेरे को वही पढ़ना है, कोई नया चीज मेरे को स्टडी नहीं करना है। दैट ऑलरेडी गिव्स अस अ वेरी कंफर्ट लेवल फीलिंग कि हाँ हम इजिली पास कर सकते। बट पूरा एफर्ट्स, पूरा सिलेबस करना, कोई चीज नहीं छोड़ना, प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, टाइम बाउंड, मॉक पेपर्स करना, उसके बाद एग्जाम देना। वेदर यू आर टेकिंग क्लासेस विथ मी और समबडी एल्स, और अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये करना होगा, कोई इसका एक्सक्यूज नहीं। और फिर आपको रिजल्ट के दिन ये बोलना नहीं पड़ेगा सर मैं पास हो गया। मेरे को भी पहले से मालूम रहेगा, आपको भी पहले से मालूम रहेगा, रिजल्ट के दिन आप पास का ही मैसेज करेंगे। पता है मेरे को जितना भी लोग पास हो रहे हैं, विद्या मेरे हाथ में है, सिली से मेरे को 95% पता है कौन पास होगा, फेल होगा। कोई एक जन अभी ऑडिटिंग का एग्जाम दिया स्किल लेवल में, वो फेल हो गई है, मेरे को पहले से मालूम था वो फेल होंगे। बोलेगा सर आप कुछ किए नहीं। सर मैं क्या करूं, अगर ज्यादा बोलूंगा तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा, मैं अगर डॉक्टर हूं आपका, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको गुस्सा कैसे लेना है? आपको तो मेरी बात माननी होगी ना, सर जो बोल रहे हैं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। इफ समबडी इज आस्किंग डाउट्स विच इज नॉट लॉजिकल, तो मैं बोलूंगा तो आपको सुनना पड़ेगा ना, बिकॉज एग्जाम का रिजल्ट फेल होने के बजाय पहले ही सुधर जाते हैं। इफ आई एम टेकिंग टेस्ट इन द क्लास एंड समबडी इज राइटिंग द आंसर बाय कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम अदर्स, जैसे मैंने पिछले दिन टेस्ट लिया, अनुराग जी आपको पता होगा किसने कॉपी पेस्ट करके आंसर लिखा है। इतना बेवकूफ थोड़ी ना है यार कि आपका एक एक लाइन मॉडल आंसर से मिल रहा है। आपका थ्योरी में भी वही पॉइंट है जो मॉडल आंसर में है। मेरे को ही बेवकूफ बना रहे हैं क्या यार? जब मैं आंसर लिखूंगा मेरा वैसा नहीं आ सकता, आपका वैसा कैसे आ गया? फिर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा है तो भी नहीं सुन रहे। और जब क्वेश्चन रेस करते हैं तो इतना निम्न कोटि का कि ये, इफ यू से दैट आई पास्ड द एग्जाम एंड देन यू से दैट आई स्कोर 40, दोनों तो मिलेगा नहीं ना। जब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने क्लास में टेस्ट लिया और आप उसका आंसर पूरा राइट कर दी, और आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्वेश्चन ऐसा फालतू पूछते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है। आप ये पूछ रहे हैं और आप ये कर सकते हैं, कैसे? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम। डोंट चीट योरसेल्फ। Maybe you are becoming hero in the class, but in the exam तो you will become zero. क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, अपने आप करिए, गलत होने दीजिए। 4 बार गलत होगा, 5वीं बार अपने आप राइट होएगा। हम लोग इंसान है, हम लोग एनिमल नहीं है। जब कोई चीज हमारे दिमाग में 2 बार 4 बार जाएगी, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली, बट उतना एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो जब टेस्ट लिया जा रहा है जेन्युइन रहिए, जब टेस्ट लिया जा रहा है टाइम में सबमिट करिए, जब टेस्ट लिया जा रहा है दूसरा जगह से रेफर मत करिए, फिर पता क्या चलेगा। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट, आई मीन टू से आई एम नॉट एंग्री, बट मेरे को लगता है कि मेरे को मालूम है भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम को मैं दूर करने का आपको उपाय बोल रहा हूं, उसको बात मानिए ना यार। अगर प्रॉब्लम नहीं दूर होगी तो मेरे को डंडा मारिएगा। टेक अ डंडा इन योर हैंड एंड बीट मी। Whatever I am saying, if it will not help you to solve your problem relating to whatever I am teaching, I am the worst person on this earth. Believe करिए यार। जब एक बार यहां आ गए तो ट्रस्ट बिल्टअप करिए
कि सर अगर कुछ बोल रहे हैं सर मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये गलती है। अपने एक स्टूडेंट एएफएम में पहला बार एग्जाम दिया, कुछ 46 आया, ठीक है, स्टूडियस स्टूडेंट। दूसरा बार एग्जाम दिया 83 आ गया, इंडिया में रैंक आ गया, वर्ल्ड रैंक नहीं आया। तो एक उसको डिफरेंस समझ में आया कि मैं पहले 46 लाया था, उस समय भी मैं पढ़ के गया था, बाद में दूसरा बार 83 कैसे आ गया। हो सकता है कि पहले चीजें ठीक से नहीं समझ में आई थी, जो कि उसको और मेरे को मालूम है। यानी कि मेरे को पता है आपके बारे में कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अनुराग जी और चिन्मय जी, अभी 2 जन है, दोनों के बारे में, और आपको भी अपने अंदर पता है। तो अपने अगर उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास कैसे होंगे। पास होने से कोई लॉटरी नहीं लगने वाला है। बट जो भी पास हुआ आज, वो चांद को तोड़ने का बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 20 साल से पढ़ाई नहीं किया और आज वो एक एग्जाम दिया, पास हो गया, आप उसका खुशी का ठिकाना सोचिए। कोई लॉटरी नहीं लगा है, बट जिंदगी में ये जो सक्सेस मिला है, ये एक नया जोश पैदा कर देगा। सक्सेस आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, नॉट फेलियर्स। Those are only in books. When you get the success, you want to do something which nobody has done. सक्सेस के पीछे भागी, सक्सेस को देखिए। 3 इडियट्स मत देखिए। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पूरा प्रॉपर एफर्ट्स पुट करते हैं, और उनको फेलियर्स कभी मिलता ही नहीं है यार। फेलियर होता ही नहीं है उनके लाइफ में। और अगर बाई चांस कभी बैड लक से हो भी गया, उनको समझ में आ जाता है मेरी गलती कहां है, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तब फेलियर्स का मतलब है। लेकिन फेल होने के बाद फिर फेल हो रहे, इसका मतलब तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड आप लोग दोनों को कुछ बोलना है, बिकॉज जब रिजल्ट निकलता है तो मेरे को ये सब फीलिंग आती है, तो मैं बोलता हूं एक साथ भाई। मे बी इट इज टाइम टेकिंग, बट फिर भी बोलना पड़ता है।